Hello students, today we are going to start the second chapter of economics class 9th, people as resource. In this chapter we will study how the people is resource. Generally, we think that we people are the consumer only. ऐसा सोचते हैं कि लोग तो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जो किसी सामान का उपयोग करते हैं. लेकिन in the other hand, the main fact is how people consume something, from where those goods which are consumed by the people they get, who are responsible to produce those goods and services which are necessary for their needs. Actually, resource means what? Resource means all those things which are needed for the fulfillment of the desire of the people. All those things, सभी चीजें जिसकी जरूरत आवश्यकता की पूर्ति के लिए होती है उसे हम साधन संसाधन या अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं. तो रिसोर्स संसाधन is necessary for the fulfillment of human want. Then how human being is himself or herself a resource? We will see here. And it is a general thing, a concept. You can see in your book the first part of our lesson is overview about it. The chapter People as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than liability. कि इस चैप्टर को इस बात के लिए में इस चैप्टर में यह प्रयास किया गया है कि यह बताया जाए कि लोग, पॉपुलेशन, जनसंख्या जो देश की होती है वो उस देश के लिए एक एसेट है, साधन है, न कि उसकी लाइबिलिटी भी है. लेकिन वही एसेट लाइबिलिटी एसेट में बदलता है तो वह देश डेवलप होता है. कैसे? पॉपुलेशन becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. Population becomes human capital when कि वही पॉपुलेशन, लोग, जनसंख्या कैपिटल बन जाता है, मानव कैपिटल. कब? जब उसके ऊपर शिक्षा में, ट्रेनिंग में और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देकर खर्च करके उनको अधिक उपयोगी बनाया जाता है. मतलब शिक्षा के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, हेल्थ केयर के द्वारा एक आदमी को हम एसेट में बदल देते हैं. एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक वो बच्चा रहता है तब तक तो पूर्ण रूप से लायबिलिटी है अपने परिवार के ऊपर. लेकिन बड़े होने के बाद, आफ्टर सर्टेन ईयर्स, व्हेन द चाइल्ड or the children of the country start earning something, contribute in the production of the country, they turn into asset. Before that, they are the liability of the family, the state or the country, because their needs are fulfilled by their parents or the state or the country. Therefore, they are called liability. But as soon as they
start earning something with the help of their education, training and health. So these three factors, education, training and health, is the more important fact that turn the liability into asset. In fact, human capital is a stock of a skill. तो ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल है कि द स्टॉक ऑफ ए स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन देम. कि ह्यूमन कैपिटल का अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में जो ज्ञान, जो कुशलता और जो उसका हेल्थ इम्प्रूव करते हैं, वही उसकी पूंजी है, मानव पूंजी है. तो ह्यूमन कैपिटल का डिफिनीशन है द स्टॉक ऑफ ए स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन देम. प्रोडक्टिव नॉलेज, नॉट डिस्ट्रक्टिव नॉलेज. सो प्रोडक्टिव नॉलेज or the skill through which they earn something, they produce something, is their human capital. Means physical capitals are many things, the money, the physical assets, building and cars and other things which people have is their physical capital. But human capital is the knowledge, is the skill, and his health is his physical human capital that cannot be separated from. This is the great difference between physical capital and human capital. Physical capital can be stolen, can be separated, can be transferred, but human capital cannot be stolen, cannot be transferred and cannot be changed with others. It is our own merit. It is embodied in our body, the knowledge, the skill. So human capital is more important than the physical capital. And physical capital is almost useless till the human capital, skill, knowledge or ability is applied on them and make them useful. आप सोच सकते हो कि जमीन का टुकड़ा कितना भी उपजाऊ क्यों नहीं हो, हीरे और सोने का टुकड़ा तब तक बेकार है जब तक लोग उसका प्रयोग करना नहीं शुरू करते हैं, लोग उसके बारे में जानते नहीं, इसलिए ये जरूरी है. तो पीपुल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग ऑफ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन. कि अब ये पीपुल एज रिसोर्स किसी देश के वर्किंग पॉपुलेशन को बताने का एक माध्यम है कि उस देश में कितने वर्किंग पॉपुलेशन है. अगर हम एक बार इसको देखें तो पॉपुलेशन को दो ग्रुप में बांटा गया है, तीन ग्रुप में, 0 to 14 इन इंडिया, 14 years to 60 years and above 60. Above 60. So there are three groups of people. Three groups of people. Child, adult या working population, old age people, retired. So from 0 to 14 years of age, because according to Indian law, any child of the children of the country, a child of the country cannot allow to earn before 14 years of age. अगर उस 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर कोई काम कराता है तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट में के अनुसार गलत है. तो काम करने का उम्र भारत में 14 वर्ष से 60 वर्ष तक का, 15 वर्ष रखा जाए, 15 वर्ष
15 to 16. After 16 they are being retired. ओल्ड एज, रिटायर्ड पीपल. तो 3 ग्रुप है, 2, एक चाइल्ड का और ओल्ड का. ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और यही वर्किंग पॉपुलेशन है. तो जिस देश में 15 से 60 वर्ष के लोग ज़्यादा हों और वो जितना ही अधिक शिक्षित होंगे, स्किल्ड होंगे या हेल्दियर होंगे, उनका वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा. इसलिए ये आपको पॉपुलेशन डायग्राम है जो 3 पार्ट में बांटता है: चाइल्ड एज, वर्किंग पॉपुलेशन एंड ओल्ड या रिटायर्ड पॉपुलेशन. तो चाइल्ड और रिटायर्ड पीपल आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जबकि ये वर्किंग पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है जो अर्न करता है और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में यही हेल्प करता है. आगे देखते हैं. एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन स्किल एंड एबिलिटी, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability कि अगर इस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट मतलब उत्पन्न करने की जो क्षमता है, emphasizes its ability to contribute in the creation of gross national product, GDP, gross national product में को बढ़ाने में, क्रिएट करने में इन्हीं वर्किंग पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है वही ज़्यादा काम करता है. लाइक अदर रिसोर्सेस, पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्स. दूसरे रिसोर्स की तरह, जैसे लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट या मिनरल्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसी की तरह जो किसी देश की जनसंख्या है उसे हम ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन कहते हैं. दिस इज द प्रोडक्टिव साइड. और इसके 2 साइड हैं. ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन, लोगों के जनसंख्या को 2 दृष्टि से देखा जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव एस्पेक्ट. तो पहले हम लोग निगेटिव एस्पेक्ट को जरा सुने बुक में, तो पहले पॉजिटिव. निगेटिव एस्पेक्ट यह है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने साथ समस्या लेके आता है कि उसको खाना खिलाना है, कपड़ा देना है, उसको उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी है, और इस तरह जीवन भर उसकी व्यवस्था, जो उसका निगेटिव एस्पेक्ट लोग सोचते हैं कि लोग ज़्यादा होंगे तो हमको ये सब चीज़ ज़्यादा चाहिए. लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो है कि अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो काम करने वाले हाथ भी तो बढ़ जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी. हाँ, यह बात जरूर है कि अगर लोगों की संख्या केवल अधिक हो, इफ द नंबर ऑफ पीपुल्स आर मोर बट दे आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनहेल्दी, देन दे आर लाइबिलिटीज देन एसेट. एंड दैट इज द problem with any country where their maximum percentage of population are illiterate, unskilled or unhealthy. But if the country is able to turn their people to provide a better education, a skill formation and health facility to their people, this turn into एसिड. और यही इसके निगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव एस्पेक्ट में बदल देता है. दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन, ये हमेशा ओवरलुक करते हैं. वी लुक ओनली एट द निगेटिव साइड, कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोवाइडिंग पॉपुलेशन विथ फूड, एजुकेशन, एसेस ऑफ हेल्थ facility. When the existing human resource is further developed
by becoming more educated and healthy, जो अभी मैंने बताया, we call it human capital formation. The word is human capital formation. कि जब हम आदमी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, पीपुल के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग जैसे गुण को डालते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, हेल्दियर बनाते हैं, तो ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे फिजिकल कैपिटल का फॉर्म होता है, बिल्डिंग बनता है, फैक्ट्रीज बनते हैं, उसी तरह हम आदमी को एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर फैसिलिटी के द्वारा ह्यूमन कैपिटल के रूप में बदलते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट ऐड टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे किसी देश में फिजिकल कैपिटल फॉर्म होता है तो उससे देश का लाभ होता है, उसी तरह इसमें भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से भी देश को लाभ होता है। दैट्स ऑल।